عمران خان ایبٹ آباد میں اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ جو غریب علاقے ہیں، کمزور علاقے ہیں، ان کے پاس پانی نہیں ہے، جو پیسہ ہے تو پانی ہے، اور جو پانی ہے بھی، پانی کی کوالٹی اتنی بری ہے پاکستان میں کہ ہماری دنیا میں میرے خیال میں سب سے زیادہ پاکستان میں بچے مرتے ہیں گندا پانی پی کے، گندا پانی کی بیماریوں کی وجہ سے۔ تو اس لیے ہم نے اب شاہ فرمان وزیر ہیں، ہم یہ بڑی دیر سے سوچ رہے ہیں کہ اب ہم ایک بڑے پیمانے پہ اس کے اوپر کیسے شروع کریں۔ تو ایک تو یہ میں نے اس لیے اسکیم دیکھنی تھی کیونکہ اس اسکیم کے اندر پانی جو اکٹھا کیا جاتا ہے، اور یہ جو میں نے آج پھر سے مجھے بتایا گیا کہ پانی صاف ہے، کم از کم یہاں کے پانی سے بیماریاں نہیں ہوگی بچوں کو۔ پانی کا پرابلم یہ ہے کہ ادھر ایبٹ آباد میں سال میں 2 وقت پانی کی کمی ہوتی ہے، آج کل کے دنوں میں اور اکتوبر نومبر میں پانی کی کمی ہوتی ہے۔ اس کے لیے یہ انہوں نے پلان کیا ہوا ہے ایک نئی سورس کرنا تاکہ پانی کی مقدار بڑھے، اور وہ اس کے لیے آج انہوں نے لوکیٹ کیا ایک نئے چشمے جدھر سے اب پانی اس میں مزید اور آیا کرے گا۔ لیکن ایشو جو سب کے لیے وہ یہ کہ یہاں کے پی میں کئی ایسے علاقے ہیں جہاں بہت برا حال ہے، مثلا ڈی آئی خان، کرک، یہ لکی، یہ سارے جو علاقے ہیں سادرن ڈسٹرکٹ، وہ بہت بڑا مسئلہ ہے پانی کا۔ تو اس کے لیے بھی ہم نے سولر ٹیوب ویلز کا بندوبست کیا جدھر بجلی نہیں ہے، کیونکہ بجلی نہیں ہے، دیہاتوں میں تو بجلی نہیں ہے، تو سولر ٹیوب ویلز شروع کیے ہیں، اور اب تک کتنے 530 کے اوپر کام شروع ہے، 530 کے اوپر سولر ٹیوب ویلز پہ کام شروع ہے، اور تاکہ دیہات ایک دفعہ ون آف کاسٹ ہے، اگر بجلی چلی بھی جائے تو یعنی اگر یہاں بجلی تو آتی نہیں ہے، آپ کو پتا ہے کہ کے پی کے کا جو بجلی کا شیئر ہے وہی نہیں ان کا پورا ملتا، تو اس کی وجہ سے سولر ٹیوب ویلز کی وجہ سے ایک دفعہ سولر ٹیوب ویل لگ گیا، پھر کسی کو فکر نہیں ہے بجلی آئے یا نہ جائے، وہ پھر مسلسل ٹیوب ویل چلتا رہے گا، اور عام لوگوں کے لیے کوئی خرچہ نہیں ہے اس کے بعد ایک دفعہ لگ جائے۔ اور ادھر لگا رہے ہیں جہاں بھی بجلی پہنچی بھی نہیں ہے ادھر، اور ٹیوب ویل خاص طور پہ جس طرح یہ جو مائکرو ہائیڈل لگا رہے ہیں، اور اب تک 180 لگ چکے ہیں، اور انشاءاللہ سال کے اند تک 350 مائکرو ہائیڈل جو پاور سٹیشن لگیں گے، وہ ان علاقوں میں لگ رہے ہیں جدھر بجلی ہے ہی نہیں، جدھر ٹرانسمیشن لائنز ہی نہیں ہیں، چشموں کے اوپر ٹربائنز لگا کے لوگوں کو 4-4.5 روپے پہ بجلی مل رہی ہے، اور کوئی لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہے یہ، اور انشاءاللہ 1000 مائکرو ہائیڈل پاور سٹیشن اور بنائیں گے سارے پختونخوا کے اندر، اب سال کے آخر تک 350 بن جائیں گے، اب تک 180 بن چکے ہیں۔ تو یہ پانی کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، اس کے اوپر اب ہم پوری پلاننگ کر رہے ہیں کہ بیٹھیں اور کتنا ہمیں پیسہ چاہیے اس کے لیے، کون سی اسکیمیں چاہیے، مختلف علاقوں میں مختلف ایشوز ہیں، لیکن پانی ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور اس کو اب ہم پوری طرح سارے کے پی میں اس کے اوپر پوری کام شروع کرنے لگے۔ اگلا یہ اسکیم مانسیرا میں ہے، اسی طرح کی اسکیم۔ جی آج جناب عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے کہ وہ 15 سالہ جو پرانی رسیدیں ہیں وہ مل چکی ہیں، عمران خان جو ہے چوروں کو جو ہے وہ بگائیں، اور وہ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ ٹریل ان کی جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے، جو سچ تو ایک ہی ہے، جھوٹ آپ کو ایک جھوٹ جب آپ بولتے ہیں تو آپ کو اس کے بعد 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، کتری بھی لانا پڑ جاتا ہے، پھر کبھی وہ جدے سے پیسہ جاتا ہے، پھر کبھی قطر سے پیسہ جاتا ہے، لیکن میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں جو مرضی تحقیقات کرو، یہ پتا چلے گا کہ حلال کے پیسے سے باہر پراپرٹی لی، وہ بیچ کے یہاں بنی گالا لی، اور وہ ایک منٹ، اور وہ جو پہلے انہوں نے کہا جی پیسے نہیں مل رہے، تو وہ آخر میں مل گئے ہیں، جمائمہ کے پاس جو اکاؤنٹس تھے وہ مل گئے ہیں، اور وہ انشاءاللہ عدالت میں آ جائیں گے۔ ہزارہ ڈویژن میں میڈیکل کمپلیکس بعد ہاسپٹل ہے جو کہ ہزارہ ڈویژن کے آزاد کشمیر کے لوگوں سے بہتر ہوتی ہے، پچھلے 10 دن سے ڈاکٹروں کی ہڑتال ہے، کل ڈاکٹروں نے ہڑتال ختم کی ہے، ایبٹ آباد کمیونٹی کے لوگ گئے اس وجہ سے، ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہاسپٹل میں کرپشن کے خلاف ہم ہڑتال کر رہے ہیں، جو ہاسپٹل انتظامیہ ہے، جو بورڈ آف آرڈر بنایا گیا ہے وہ کرپشن ہے۔ میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جو کالج کی ڈین لگائی گئی ہے اس پہ وزیر اعلیٰ کی انسپیکشن ٹیم نے کرپشن ثابت کی ہے، اور ریکوری کرنے کی بجائے 62 لاکھ روپے ریکوری ہے، ان کو ڈین لگا دیا گیا ہے۔ دیکھیے جی، ایک منٹ بات سنیں، ایسی ایک منٹ سنیں میری بات،
जब भी आप ये कोई बात करते हैं ना, जज फैसला करता है जब दोनों तरफ सुन लें, एक साइड पे सुन के कभी फैसला नहीं होता। जहां तक मुझे पता चला है, ये पहली दफा पख्तूनख्वा की तारीख में तो नहीं, जब से ये नेशनलाइज हुए और जब से डॉक्टर्स को पब्लिक सर्वेंट बनाया गया, ये पहली दफा है कि एक्शन लिया गया है कि डॉक्टर्स को हॉस्पिटल में हो और प्राइवेट प्रैक्टिस भी हो तो वो हॉस्पिटल में हो, ताकि गरीब मरीज बेचारे अस्पतालों में आते हैं, वहां के डॉक्टर ही नहीं होते। अब तक आप बताएं, हमने कई जगह देखा कि 1 घंटा जो टॉप कंसल्टेंट्स है 1 घंटा सारे दिन में अस्पताल में आते हैं। लिहाजा उन्होंने एक नया सिस्टम शुरू किया, बायोमेट्रिक, कि जब तक आके आपका अंगूठा नहीं लगेगा और आपकी अटेंडेंस नहीं होगी, उसके मुताबिक आपको तनख्वाहें दी जाएंगी। उसके ऊपर हमें पता है कि स्ट्राइक बनी है। उसके प्रेशराइज करने के लिए कि जी हम ये नहीं चलते ये नए सिस्टम के, उसके ऊपर ये करप्शन का नाम जो लिया, एक इंडिपेंडेंट बोर्ड आ गया। ये पहली दफा आपके पास है कि बोर्ड्स बैठे हुए हैं, उनमें प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं जिनका काम है कि आपके हॉस्पिटल को जैसे प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल चलते हैं वैसे चलाया जाए। आपको पता है कि पहली दफा प्राइवेट हॉस्पिटल से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आ रहे हैं पेशावर में अब लोग, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सिस्टम ठीक किया है। इसी तरह जब ये आप एक नया सिस्टम लेके आते हैं, कई लोग मुतासिर होते हैं जो फायदा उठा रहे होते हैं पुराने सिस्टम से, और वो ये स्ट्राइक करते हैं। मैं आपको ये बताऊं, किसी सूरत ब्लैकमेल नहीं होंगे। हम ब्लैकमेल इसलिए नहीं होंगे कि ये उधर भी शुरू किया गया पेशावर में, वहां भी स्ट्राइक करवाई, वहां भी बंद करवाने की कोशिश की। ब्लैकमेल नहीं होंगे हम पूरी तरह, जब तक एक नया जो सिस्टम, देखें सारी दुनिया में एक नया सिस्टम चल रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल बेहतर चलते हैं, उनका सिस्टम चल रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल तबाह हुए हैं। इसलिए हम तो इसकी रिफॉर्म करके रहेंगे। जी एग्री करते हैं, रिफॉर्म्स आई हैं यू मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर, लेकिन ये 90 अमवात जो चुकी हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? जो डॉक्टर्स ने स्ट्राइक किए वो जिम्मेदार है। देखें, एक मिनट सुन लें। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है कि एसेंशियल सर्विसेज स्ट्राइक नहीं कर सकती। इन्होंने उसके खिलाफ जाके स्ट्राइक किया। जी, आपने जिस तरह शुरू दिन से आप कह रहे हैं कि बल्दियाती सेटअप के हवाले से आपका बड़ा मजबूत एक मौक़िफ़ रहा है कि जो निज़ाम है वो निचली सतह तक मुंतकिल होना चाहिए। इस वक्त एबटाबाद में सूबे भर के तकरीबन 4 से 5 अजला हैं जिनमें बल्दियाती सेटअप पूरी तरह मुतासर है, और खासतौर पर एबटाबाद के जो बल्दियाती निज़ाम है, इसमें ज़िली हुकूमत जो है इस वक्त बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है। तो उस हवाले से फ्लॉप नहीं हुई, वहाँ अदालत ने एक फैसला किया हुआ है, अदालत ने फैसला किया कानून के मुताबिक, और वो अभी तक सस्पेंड हुआ है। अब जब अदालत फैसला करेगी रिस्टोर हो जाएगा। देखें, एक चीज याद रखें, पहली दफा आज आपके पास एक बल्दियाती निजाम आया है पख्तूनख्वा में जो कभी पाकिस्तान में नहीं आया। आज पंजाब की सारे बल्दियाती नुमाइंदे, सिंध के नुमाइंदे, कराची का मेयर कह रहा है कि हमें पख्तूनख्वा का सिस्टम चाहिए, यानी वो सारे कह रहे हैं कि पख्तूनख्वा का बल्दियाती निजाम चाहिए। जब आप नया निजाम आता है उसमें मसले आते हैं। पहली दफा कभी पावर नीचे गई है, पहली दफा पैसे नीचे गए हैं, कभी इतनी स्पेंडिंग ही नहीं नीचे गई, तो जब आपके पास आते हैं तो इसमें मसले आते हैं। थोड़ा सब्र करें। मुझे पता है कि एबटाबाद में ज्यादा बड़ा मसला आ गया और अब अदालत में केस है, हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही होगा आपका सिस्टम चल जाएगा। जी एक मिनट जी। उसके बाद जो है GIT के ऊपर उसका जो गैर जानिबदारी थी, क्या आप समझते हैं कि उसके ऊपर भी सब प्रेशर है? ये निहाल हाशमी का बिल्कुल वही इन्होंने ड्रामा किया। ये नवाज शरीफ की पुरानी आदत है। पहले उसने वो जो इनका एक सेनेटर था, कौन सा, वो जो खान है, मुशाहिदुल्लाह, उससे इन्होंने स्टेटमेंट दिलवाई, फिर उसका इस्तीफा लिया, फिर उसको और नवाज दिया है, उसके भाइयों को पता नहीं क्या क्या होते दे दिए। उसके बाद वो परवेज रशीद को कुर्बानी का बकरा बनाया डॉन लीग्स के ऊपर, उसको वो भी अभी वहीं का वहीं बैठा हुआ है। अब ये बड़ा प्लान करके इन्होंने JIT को हिट किया है, और ये पुरानी इनकी आदत है। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डंडों से हमला किया हुआ है नवाज शरीफ के कहने पे। ये जज को खरीदते हैं, अगर जज तैयार नहीं है बिकने के लिए तो फिर उसके ऊपर अटैक करते हैं। ये JIT के ऊपर वही कर रहे हैं, प्रेशराइज। 2 तरह के होते हैं, माफिया है ना ये, इनके ऊपर बिल्कुल नवाज शरीफ के ऊपर उन्होंने जब गॉडफादर का है सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने
सुप्रीम कोर्ट के जज में, वो ठीक है, क्योंकि माफिया जो होता है वो या खरीदता है और या फिर उनको इस तरह धमकियां देता है, डंडे से मारता है, केसेस करता है, इंतकामी कार्रवाई करता है। ये इनके दो तरीके हैं। निहाल हाशमी ने जो किया है इसका सिर्फ और एक जगह है, जेल में, ताकि इबरतनाक सजा मिले, एक पैगाम जाए लोगों के लिए कि आप एक इंक्वायरी हो रही है और आप उनके बच्चों को धमकियां दे रहे हैं कि हाँ ये इस मुल्क में नहीं रह सकेंगे। इससे बड़ा जुर्म क्या है? जी, आज जॉइंट सेशन हुआ पार्लियामेंट का, उसमें आपको तो नजर नहीं आई, जो अपोजिशन थी उसने जो रवैया इख्तियार किया पूरी हिद्दत को बता रहे हैं, आप नहीं समझे कि जो नेगेटिव पार्लियामेंट से पूरी दुनिया में गए उस पर आप क्या? मुझे ये बताएं कि जो सारी दुनिया में गया है, जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को जो सऊदी अरेबिया में उन्होंने रवैया इख्तियार किया है, तब हमें शर्म नहीं आई? देखिए, दुनिया के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर क्रिमिनल ट्रायल हो रही है, क्रिमिनल ट्रायल, यानी एक होती है सिविल, एक क्रिमिनल ट्रायल हो रही है। और वो जाके जब दुनिया वो तू मान या ना मान, मैं तेरा मान, वो बैठा हुआ है ऊपर, वो यानी केस नीचे चल रहा है जेआईटी का। इनको तो शर्म आनी चाहिए, ये जो बात करते हैं कि जेआईटी के मेंबर्स के ऊपर हमें एतराज है। केस चल रहा है जेआईटी का प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर, वो ऊपर बैठे हुए हैं, उनके नीचे जिन इदारों ने इनके ऊपर तहकीकात करनी है। ये दुनिया में कभी सुना है? एक ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, वजीर रिजाइन कर देता है क्योंकि नीचे तहकीकात होंगी, अगर वो ऊपर बैठा है तो नहीं हो सकती। यहाँ प्राइम मिनिस्टर भी जमा हुआ अपनी कुर्सी पे, फाइनेंस मिनिस्टर भी बैठा हुआ है, तो ऑपोजिशन अगर शोर नहीं मचाएगी तो क्या करेगी? सर, एक सवाल छोटा सा जी, अमेरिका ने सऊदी अरब को साजिश डालकर शकील अफरीदी की वापसी का मुतालबा किया है। क्या सर शकील अफरीदी की वापसी अगर होती है तो क्या ये पूरी पाकिस्तानी कौम के माथे पे मुंह पे थप्पड़ नहीं है कि आफिया सिद्दीकी उधर बंद है, उसका एहसास नहीं है किसी को? आफिया सिद्दीकी बंद है, और भी पाकिस्तानी कितने जेलों में पड़े हुए हैं, पाकिस्तान से बाहर, कोई पूछने वाला नहीं है उनको। और उससे पहले आमिर कांसी को हमने पकड़ा दिया, कोई कानून नहीं था। फिर रमजी यूसुफ को पकड़ा दिया, फिर रेमंड डेविस ने दिन दिहाड़े 2 लोगों को कत्ल किया, उसको बाहर भेज दिया। तो ये एक लगता है कि हम पता नहीं कोई किस तरह की मखलूक है जिसके ऊपर जो मर्जी जुल्म हो। हमारे लिए एक कानून है और दूसरों के लिए दूसरा कानून है। ये बिल्कुल गलत है। देखें, कौम की तब इज्जत होती है दुनिया में जब वो कौम अपनी इज्जत करती है, अपने लोगों की इज्जत करती है। जब वो अपने लोगों की हिफाजत करती है तो दुनिया उस कौम को इज्जत से देखती है। जब एक कौम सुने आफिया सिद्दीकी के लिए अगर किसी ने भी सबसे ज्यादा जद्दोजहद की है, पहले दिन से आवाज उठाई है, वो मैंने उठाई है। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ आखिर में, ये आखिरी बात ये है जी कि इस वक्त पाकिस्तान अपने एक ऐसे तारीखी मरहले पे खड़ा हुआ है कि अगर तो हमने जो सब एक माशरा चलता है इंसाफ के ऊपर, शरीयत जो है वो अदल और इंसाफ के ऊपर बुनियाद रखी होती है, उसके ऊपर मदीना की रियासत खड़ी हुई। जब तक एक माशरे में इंसाफ ना हो वो माशरा ज्यादा देर चलता नहीं है। हजरत अली का कौल है, कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। ये आज हम उधर खड़े हैं। इस मुल्क में फैसला ये होना है कि क्या अगर एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर डाके मारे, चोरी करे, मनी लॉन्ड्रिंग करे, क्या है हमारा इंसाफ का निजाम उसको पकड़ सकता है? और अगर उसे पकड़ेगा तो इस मुल्क में कानून की बालादस्ती का सरबराह पीटीआई इमरान खान जो कि तकरीब से खिताब कर रहे थे, बनी गाला अराजी हलाल के पैसों से खरीदी, अदालत में साबित करूंगा। इमरान खान का ये कहना था। एक झूठ के बाद 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, ये कहना था इमरान खान का। और बनी गाला अराजी हलाल के पैसों से खरीदी, अदालत में ये साबित करूंगा, ये कहना है इमरान खान का।